Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 789. How are you all? Today's topic is present perfect continuous tense. We have already done present perfect and present continuous tense. Now, what is present perfect continuous? When time is added with present continuous, it becomes present perfect continuous tense. When time is added with present continuous tense, it means that it remains present continuous tense but we add time in it. वक्त जब शामिल कर दिया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो ये क्या बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ विच टाइम इज एडिड, कौन सा टाइम ऐड किया जाता है. टाइम इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज टाइम दैट इज फिक्स्ड और क्लियरली मैंशनड टाइम. फॉर एग्जाम्पल मंडे 1980 6 o'clock which is called time point. फर्स्ट वन टाइप ऑफ द टाइम इज विच इज़ फिक्स्ड और क्लियरली मैंशन, जो कन्फर्म होता है, जो हमें पता होता है कि कौन सा टाइम है, कौन सा वक्त है. जैसे मंडे 1980 6 o'clock, दिस इज़ कॉल्ड फिक्स टाइम. नंबर टू इज़ टाइम दैट इज़ नॉट फिक्स्ड और नॉट एग्जैक्ट. फॉर एग्जाम्पल 2 hours 4 days etc. दिस इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड. नाउ नॉट फिक्स टाइम इज़ दैट 2 hours विच 2 hours हमें नहीं पता, दिन के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, किसी हफ्ते के 2 घंटे हमें नहीं पता. 4 days, कौन सी 4 days, हफ्ते के, महीने के, हमें नहीं पता. द टाइम विच वुड बी क्लियरली मैंशन इज कॉल्ड फिक्स टाइम एंड द टाइम विच इज़ नॉट क्लियरली मैंशन इज कॉल्ड अनफिक्स टाइम. सो वी एड time with present continuous tense and it becomes present perfect continuous time. Now what is fixed time, fixed time and unfixed time? This is just for your comprehension. 2 o'clock Thursday 13 March 1980 evening, morning, yesterday, tomorrow etc. This type of time is called fixed time. And unfixed time, 2 hours which 2 hours we don't know, 10 minutes which 10 minutes we don't know, 3 days which 3 days we don't know, 1 day which 1 day we don't know, 2 years etc. This is called unfixed time. Now how we translate affirmative sentences of present perfect continuous from Urdu into English? The rules you have to follow are you have to listen very clearly, very attentively. Okay, first is subject. Second, we use has and have as helping verb in present perfect tense. You remember, we use has and have in present perfect tense. We use has with he, she, it and singulars, have with I, we, they, you and all plurals. Now here we will add been plus fourth form of verb. Fourth form of verb is first form plus ing, which we use in present continuous tense, plus object. The sentence here sentence completes, but we add since and for plus time. Since, for and addition of time makes present perfect tense present perfect continuous. Present tense to perfect continuous. What shows that it is present perfect continuous time? The addition of time, which would be shown by the since and for. Since will be used with fixed time where time is clearly mentioned. For will be used with unfixed time where time will be not clearly mentioned. Now look, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं. आ रहे हैं shows that it is continuous tense. सुबह से is the addition of time, so it shows that this is perfect continuous tense. लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं. First we would have to look at the subject. Subject is लोग, people. Now people is plural, so we'll use with it have. Have, then we will add been. Then first form of आना is come and we will add ing to make it continuous. The people have been coming to the park. Then object the park. Since morning, sorry, I have written here 4 o'clock, it's my mistake, it's subah. Okay, since morning, write it morning. People have been coming to the park since morning. We add since because the time is confirmed that people are coming to the park from morning. बच्चा 2 घंटे से रो रहा है. Now subject the child. Now helping verb we will use has. Why we will use has? Because it's singular. It's singular. Has been weeping for 2 hours. Why we add for? Because
द 2 hours आर नॉट फिक्सड. विच 2 hours? कितने, कौन से 2 घंटे से रो रहा है हमें नहीं पता, सो वी यूज फॉर इट. लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है. नाउ लड़की इज द सब्जेक्ट. द गर्ल इज सिंगुलर, सो विल यूज हैज बीन. Taking is the fourth form of take. Medicine. Then object is medicine. For 3 days. Why we used 4? Because 3 days are not fixed which 3 days of the week. So here we use the girl has been taking medicine for 3 days. उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है. What is the subject? उस्ताद. The teacher is a singular, so we use has. Then been, the teacher has been teaching is fourth form or first form with ing. Since 8 o'clock. Why we used since? Because it's confirmed that the teacher is teaching from 8 o'clock, so we used since. The since will be used with the fixed time and the for will be used with the unfixed time. Now वो 2 साल से कॉलेज आ रही है. वो subject she. Then helping verb has, because she is singular. She has been coming to college for 2 years. Which 2 years we don't know. साल के कौन से 2 साल हैं किस एरा के, वो हमें नहीं पता. So that's why we used for here. Now comes to the negative sentences. As usual we will use not with helping verbs and the remaining structure will remain the same. Subject plus has not, have not plus been plus fourth form plus object plus since for plus time. टाइम इज़ सुबह से, 2 घंटे से, दिन से, रात से, दैट इज़ टाइम. उसको हम सबसे आखिर में ट्रांसलेट करेंगे. उससे पहले हम क्या लगाएंगे? सिंस और फॉर. सिंस विल बी यूज्ड विद फिक्स टाइम, फॉर विल बी यूज्ड विद अनफिक्स टाइम. वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है. ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days. फॉर इज़ यूज्ड हियर बिकॉज द टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड. मुसाफिर शाम से आग नहीं जला रहे हैं. द पैसेंजर्स हैव नॉट बीन burning the fire since evening. Now you have noticed that the been is written between has not been. ठीक है. not will be written between the has and been. not जो है वो has और been के दरमियान में आएगा. have या has के बीच में जो है वो been और has have के बीच में हम not लगाएंगे. has not been. दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है. the tailor has not been working for many days. कई दिनों से कपड़े नहीं सी रहा है. The tailor has not been working for many days. शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है. The hunter has not been setting net for several months. Now कई दिनों से, कौन से कई दिनों से कपड़े नहीं सी रहा? We are not sure, so we used for. कौन से कई महीनों से शिकारी जाल नहीं बिछा रहा? We are not sure, so that's why we used for. पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रहे हैं. द पुलिस हैव नॉट बीन पेट्रोलिंग द सिटी सिंस मंडे. नाउ हेयर द टाइम इज क्लियरली मेंशन फ्रॉम व्हेन पुलिस इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी फ्रॉम मंडे. सो we'll use since with the Monday. The police have not been patrolling the city since Monday. Now comes interrogative sentences. The rules are has, have will come in the beginning. We use has and have in the beginning of the sentence. Plus subject, then we add been plus fourth form plus object, then again since, for or time. And if there will be कब, कहाँ, कैसे, so we will add when, where first, then we will add has, have. Has the child Amir. Okay, here I have done a little mistake. अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है. आई हैव रिटन इट्स ट्रांसलेशन हेयर. ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया है गलती से. ठीक है. नाउ यू हैव टू राइट इट क्लियरली. आप जब लिखेंगे तो आप इसकी ट्रांसलेशन पहले लिखना, इसकी बाद में लिखना. ये मैंने गलती से कर दिया है. ठीक है. मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ये गलती हो गई मुझसे. अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है. सिंस व्हेन हैज़ द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट. नाउ सिंस जो है वो हमने पहले लगाया यहाँ पे, फिर हमने क्या लगाया? व्हेन. Since when has the rich man been taking rest. पहले हम जो है वो क्वेश्चन मार्क, इसको क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए सिंस पहले लगाएंगे, फिर हम जो है वो अगर वहाँ पे कहाँ, कब, कैसे होगा तो वो ट्रांसलेशन लगाएंगे. अगर नहीं होगा तो हम हैज़ हैव लगाएंगे डायरेक्ट. सिंस when has the rich man been taking rest. कब से जो है वो अमीर आदमी आराम कर रहा है. क्या बच्चा 2 बजे से खिलौने से खेल रहा है.
हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock? क्या बच्चा 2 घंटे से खिलौनों के साथ खेल रहा है सिंस 2 o'clock? अच्छा, सी हेयर सिंस इज यूज फर्स्ट। पहले यहाँ पे हमने सिंस लगाया है क्योंकि यहाँ पे WH क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे WH क्वेश्चन नहीं था तो हमने पहले हैज़ लगाया है, फिर जो है वो हमने सिंस को लास्ट टाइम के साथ ऐड किया है। अगर WH क्वेश्चन होगा तो सिंस फर्स्ट आएगा, अदरवाइज सिंस विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस विद टाइम। क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं? हैव योर फ्रेंड्स, हैव इज यूज बिकॉज फ्रेंड्स इज प्लूरल, बीन हेल्पिंग यू सिंस अक्टूबर, द टाइम इज क्लियरली मेंशन सो हियर इज सिंस इज यूज्ड हियर। क्या शाम से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, टाइम इज क्लियरली मेंशन सो सिंस इज यूज्ड हियर। माली कब से नए दरख्त लगा रहा है? सिंस व्हेन हैज़ द गार्डनर बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज, माली कब से जो है वो नए दरख्त लगा रहा है। नाउ हियर अगेन इज WH क्वेश्चन, सो वी यूज सिंस बिफोर WH क्वेश्चन, देन वी ऐड हैज़, helping verb, and then the remaining structure of the sentence. I hope you would understand. If you will resume the video 2 or 3 times, you will get the point. The main point which you have to remember is that where we use since and for. Since will be used with fixed time, for will be used with अनफिक्स टाइम, ठीक है। जो टाइम कंफर्म होगा, श्योर होगा, क्लियरली मेंशन होगा, उसके साथ आप सिंस यूज़ करेंगे, उसके और जो नहीं श्योर होगा उसके साथ आप फॉर यूज़ करेंगे। और जब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हैज़ हैव, यू ऑलरेडी नो दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव यूज़ करते हैं। हैज़ हैव कब यूज़ करते हैं? सिंगुलर सी शीट के साथ, प्लूरल आई विद एक यू के साथ। उसके बाद आप बीन लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म विच आई टोल्ड यू इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, फिर आप सिंस या फॉर लगाएंगे और फिर साथ टाइम ऐड करेंगे। टाइम सुबह से 2 घंटे से कब से, वो ये टाइम आप साथ ऐड करेंगे, ठीक है। इसको आप 2 to 3 टाइम्स जब गौर से देखेंगे तो आपको जो समझ आ जाएगा। हेयर इज योर होमवर्क विच आर दिस सेंटेंसेस, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। तुम 6 बजे से दोस्तों को हाथ लिख रहे हो। मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है। वो 1983 से पेंशन ले रहा है। तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। ये लड़के 3 दिन से शरारत नहीं कर रहे हैं। मैं दिसंबर से नया नावल नहीं लिख रहा हूँ। हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है। ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। लोग कल से डाकू की मौत पर अफसोस नहीं कर रहे हैं। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। उसका भाई 4 रोज़ से नमाज नहीं पढ़ रहा है। बशीर 7 बजे से कौन सी कहानी लिख रहा है। क्या मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है। मज़दूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं। दुकानदार 3 दिन से दुकानें क्यों सजा रहे हैं। आप 4 घंटे से क्या कर रहे हैं। You have to translate these sentences and if I have written something mistakenly, ऊपर नीचे अगर कुछ मैंने गलती से लिख दिया हो, आप दोबारा जब इसको पढ़ेंगे तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। I was not feeling well, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। इंशाल्लाह we will continue by tomorrow with something else। अभी हमने प्रेजेंट का टेंस के 4 टाइम्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपने इसको माइंड में रखना है, इसको लिख के रखना है। अब फॉर द चेंज हम कल कोई और ग्रामर का काम करेंगे, फिर हम जो है वो नेक्स्ट टेंस करेंगे, ठीक है। Allah Hafiz, take care.